وزیر برائے ایویشن ڈویژن نے ایوان کو اطلاع دی ہے کہ وہ 5 تا 20 اگست کے ہونے والے اجلاس میں شرکت سے قاصر رہیں گے۔ جناب نور الحق قادری وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نے ایوان کو اطلاع دی ہے کہ موجودہ مکمل اجلاس میں شرکت سے قاصر رہیں گے۔ جی پوری ہو گئی۔ جی بلاول زرداری صاحب۔ اسپیکر، ابھی ہم نوز لابی میں بیٹھے تھے اور ٹی وی پہ آ رہا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک اپوزیشن لیڈر کو، ایک اپوزیشن ممبران کو، ایک خواتین کو اس حکومت نے اریسٹ کیا ہے۔ جناب اسپیکر، میرے خاندان اس ملک میں نسلوں سے سیاست کر رہا ہے، ہم نے سب کچھ دیکھا ہے۔ ظالم عامر ضیاء نے، شاید ظالم عامر ضیاء وہ واحد عامر تھا جو اس ملک میں اپنے سیاسی مخالفین کے عہدے کے پیچھے پڑتے تھے، اور پھر سے یہ نیا عامرانہ نیا پاکستان میں ہم پہلے دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اتنے بے غیرت ہو، اتنے بے غیرت ہو، اس الفاظ کو نکالا جائے، ایوان کی کارروائی سے نکالا جائے اس کو۔ تاریخ یاد رکھے گا کہ عمران خان جو کہ انصاف کا بات کرتا تھا، جو انصاف کی بات کرتا تھا، جو اس ملک کے نوجوانوں کو کہتا تھا کہ میں انصاف کروں گا، میں سب کو موقع دوں گا، اس نیا پاکستان میں کوئی کنوکشن کے بغیر آج آپ نے مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا ہے۔ اس بات میں میں خاموشی، نعرے بازی بالکل برداشت نہیں کی جائے گی، کوئی نعرے بازی یہاں پہ نہ لگائے، اور غور سے سنیں، غور سے سنیں۔ جی مراد سعید صاحب، جی مراد سعید صاحب، آپ سے پہلے مراد سعید نے مانگا ہوا ہے۔ جی مراد سعید صاحب۔ اسپیکر صاحب، ابھی جو حادثاتی چیئرمین ہے اس نے غیرت کی بات کی۔ غیرت آپ کو ملے گا پوائنٹ آف آرڈر، پہلے بات سنیں۔ آپ تمام اپنی نشست پہ بیٹھے اور غور سے مراد سعید کی بات سنیں۔ اسپیکر صاحب، ابھی آپ نے ایک پرچی والے، حادثاتی والے، ایک ڈاکو چور خاندان کے ترجمان کو بات کرتے ہوئے سنا۔ اگر اتنی آپ میں غیرت ہے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر 2 منٹ بعد سن لیں، لیکن یہاں پہ دھمکی دے کے بھاگ جاتے ہیں۔ اسپیکر صاحب، چھری میں والد پکڑا گیا، چھری میں پپو پکڑی گئی، چھری میں اس جانساجی کا ابو پکڑا گیا، چھری میں اسپیکر صاحب بڑی اہم ہے۔ جی مراد سعید صاحب، کیا یہ کوئی پارلیمانی انداز ہے کہ ایک بندہ جو شارٹ کٹ سے، جو حادثاتی طور پہ، جو پرچی کی بنیاد پہ ایک پارٹی کا سربراہ بنا، آپ کو دے رہے ہیں، جی دے رہے ہیں آپ کو، اس کے بعد وہ وزیر ہیں، اس کے بعد ہوگا، آپ کو دے رہے ہیں، پہلے میں نے ان کو دیا ہے، دے رہا ہوں آپ کو، دے رہا ہوں آپ کو دے رہا ہوں، آپ بیٹھے نا، آپ بیٹھے، آپ کو دے رہا ہوں نا، اس سے پہلے اس نے مانگا، بیٹھے، یہ نعرے بازی کر رہے ہیں، ان کو منع کریں۔ آپ میں نہیں ہے غیرت، آپ میں نہیں ہے شرم، آپ میں نہیں ہے، آپ بیٹھ جائیں، آپ میں نہیں ہے، ملک کو تم نے لوٹا۔ اور دوسری بات اسپیکر صاحب، اگر اس قسم کے انداز ہوں گے تو میں اس بندے کو بتانا چاہتا ہوں، یہ تو خود اپنے یہ جو درباری ہے ان کو آگے کر دیتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم ہر زبان میں جواب دے سکتے ہیں، ہم ہر انداز میں جواب دے سکتے ہیں، ہم ان کو ان کے لہجے میں جواب دے سکتے ہیں۔ اور یہ جو کھڑے ہیں یہ سارے درباری، ان کے اوپر بھی کرپشن کا الزام، خورشید شاہ کے اوپر بھی کرپشن کا الزام، احسن اقبال کے اوپر بھی کرپشن کا الزام، یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ گیس چور ہے، بجلی چور ہے، اس نے قبضہ کیا تھا، وہ قبضہ ٹھنڈوا ہے کیا؟
स्पीकर साहब एक फैसला करना होगा कि अपने ذاتی मफादात की खातिर हमने मुल्क को अपने पार्लियामान को इसी तरह रखना है या हमने कौम की बातें करनी है, लोगों की बात करनी है, लोगों के मसले हल करने हैं। और मोदी का यार आपका वही जो जलसाजी में पकड़ी गई थी सजन जलदार को किसने बुलाया था, मोदी को अपने घर किसने बुलाया था, मोदी को अपने नवासी की शादी पे किसने बुलाया था। लेकिन स्पीकर साहब इनमें शर्म नहीं है, इनमें हया नहीं है। स्पीकर साहब एक चीज के ऊपर बात होनी चाहिए कि आप पार्लियामान में कभी प्रोडक्शन ऑर्डर का बहाना लेके, कभी गिरफ्तारी के खिलाफ, कभी अपने ذاتی मफादात की खातिर पार्लियामान को इस्तेमाल करते हैं। इस पार्लियामान के ऊपर कौम का पैसा लगता है, इस पार्लियामान के ऊपर अवाम का पैसा लगता है। कौम और पूरी कौम और मुल्क इस पार्लियामान को देख रहा है। स्पीकर साहब अगर इदारों ने अपनी कार्रवाई की है तो क्या ये जो बेशरम आदमी यहाँ पे आया और जिसके अब्बू भी इस वक्त चोरी के इल्जाम में जेल है, जिसकी पुप्पू भी चोरी और डाके के इल्जाम में जेल है, जिसने सिंध को लूटा, जिसने सिंध के सियात को लूटा, जिसने सिंध के पानी के ऊपर डाका डाला, जिन्होंने कराची के हुकूक के ऊपर डाला, जिन्होंने कराची को अपनी सीटों पे जाएं वरना मैं इजलास खत्म कर दूंगा। आप अपनी निशस्तों पे जाएं। ये तरीक़ेकार होते हैं। इनको अपनी निशस्त पे भेजें, मैं इजलास खत्म कर दूंगा। तो आप इनको बिठाएं पहले। कि परसों जब कश्मीर के हवाले से बहस हो रही थी तो उस वक्त भी इन्होंने कश्मीर के ऊपर बहस नहीं की। इन्होंने कहा कि जब तक उन डाकुओं को, उन चोरों को प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, कश्मीर के भाई अगर शहीद हो रहे हैं उनको शहीद होने दो। अगर कश्मीर में कश्मीरियों के घर जल रहे हैं उनके घर जलने दो। अगर वहाँ पे मेरी माओ बहनों के साथ जुल्म हो रहा है उनके ऊपर जुल्म होने दो, लेकिन इसके चोर अब्बू का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दो। जो सादिर फीका था उसका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दो। राना अपनी निशस्त पे बैठ जाएं। अगर आप अपनी निशस्त पे नहीं बैठेंगे मैं इजलास खत्म कर रहा हूँ। स्पीकर साहब कोई अपनी निशस्त पे जाके बैठे, आपको मैं कह रहा हूँ अपनी निशस्त पे जाके बैठे। अगर नहीं बैठेंगे मैं इजलास की कार्रवाई खत्म कर रहा हूँ। कश्मीरी कौम हमारी तरफ देख रही है, खुदा के लिए। तो आप बैठेंगे तो मैं जो उनको बुलाऊंगा, आप जब तक नहीं बैठेंगे मैं नहीं दूंगा। खुदा के लिए कराची में बैठे ना, आप अपनी निशस्त पे जाके बैठे। कुंडी बनाया उसको खत्म करने के ऊपर हम जा रहे हैं। खुदा के लिए कि आज पाकिस्तान को हम तरक्की याफ्ता ईवान की कार्रवाई बरोज जुमा 11 बजे तक सुबह मुलतवी की जाती है। फयाज अली शाह शिराजी ने 5 अगस्त के लिए रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। जनाब जेम्स इकबाल ने 2 और 5 अगस्त के लिए रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। मिस नफीसा नायतुल्लाह खटक ने 1 और 2 अगस्त के लिए रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। मलिक सोहेल खान ने 5, 8 और 9 अगस्त के लिए रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। सैयद इमरान अहमद शाह ने मुकम्मल इजलास की रुखसत की दरख्वास्त की है। जी क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। जनाब अहमद हुसैन ढेर साहब ने 29 जुलाई तक 5 अगस्त के लिए रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। सरदार तालिब हुसैन नकई साहब ने 8 और 9 अगस्त के लिए ईवान से रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। जनाब खुरम शहजाद ने 1 तक 5 अगस्त के लिए ईवान से रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। जाम अब्दुल करीम बज्जार ने मुकम्मल इजलास की रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। राना इरादत शरीफ खान ने 5 अगस्त के लिए रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। जनाब मोहम्मद खान डाहा साहब ने 5 अगस्त के लिए रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। राना मोहम्मद इसाक खान ने 1, 2 और 5 अगस्त के लिए रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। चौधरी इफ्तिखार नज़ीर ने 1, 2 और 5 अगस्त के लिए रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। जनाब इबादुल्लाह खान ने 2 और 5 अगस्त के लिए रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। जनाब रियाज फतियाना ने 29 जुलाई तक 2 अगस्त के लिए रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है।
मिस गजाला सैफी ने 2 और 9 अगस्त के लिए रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। जनाब इफ्तिखा आफ्ताब हुसैन सदीकी ने 8 और 9 अगस्त के लिए रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। मिस अंदलीब अब्बास ने 5 अगस्त के लिए रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। मिस शंदाना गुलजार खान ने 29 जुलाई तक 2 अगस्त के लिए रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। मखदूम जैन हुसैन कुरैशी ने 5 अगस्त तक इख्तिताम इजलास रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। जनाब मोहम्मद इकबाल खान ने 8 और 9 अगस्त के लिए रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। जनाब जहूर हुसैन कुरैशी ने 1 और 2 अगस्त के लिए ईवान से रुखसत की दरख्वास्त की। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। मिस रुबीना जमील ने 1 तो 5 अगस्त रुखसत के लिए दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। मिस ताशफीन सफदर ने 2 अगस्त के लिए ईवान से रुखसत की दरख्वास्त की। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। मिस